ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکون. That when they say the similitude of Jesus in front of Allah is the same as Adam. They were born from dust and said, be an it was. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں. ایک عیسائی لڑکے نے جو کہ ایک یونیورسٹی طالب علم تھا، ایک اہم انٹرنیشنل کانفرنس میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے، تو انہیں خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہا جاتا؟ مسلمان ایسا کیوں نہیں کہتے؟ اس لڑکے کا سوال مناسب اور معمول کے مطابق تھا، لیکن اس لڑکے کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک مقام پر غصہ آیا تو انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ختنے ان کی پیدائش کے 8ویں دن ہو گئے تھے، مگر مسلمان تو اس پر عمل کر کے ختنے کروا لیتے ہیں، عیسائی نہیں کرواتے. دوستو ہماری آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے. آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آخر تک دیکھنے سے ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کا کیا جواب دیا اور یہ گفتگو کیسے آگے بڑھی. اس کے علاوہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے ایک سوال کیا کرتے ہیں جس کا اچھا سا جواب دے کر کامنٹ کی صورت میں آپ صدقہ جاریہ کا باعث بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے کامنٹ سوشل میڈیا پر سینکڑوں سالوں تک موجود رہتے ہیں اور ہزاروں لوگ انہیں پڑھتے ہیں. لہٰذا آپ کی لکھی ہوئی بات سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آئیے دوستو آج کی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب میں کہا کہ ہمارے اس بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانا جاتا. دوستو آپ کے خیال میں اس کا بڑا آسان سا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کی سورہ اخلاص اسی حوالے سے ہے، جہاں یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا، نہ کوئی اللہ کو پیدا کر سکتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اس طرح سے جواب دے سکتے تھے، مگر انہوں نے کچھ مختلف انداز اپناتے ہوئے ذرا مختلف جواب دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ختنوں سے متعلق گفتگو پر جا پہنچی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ مجھے یا اس پوری دنیا کے لوگوں کو یا تمام مسلمانوں کو خدا کا بیٹا کہیں تو ایسے کہنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ان کے بیٹے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں بائبل کا. بائبل میں اگر آپ بائبل کی زبان دیکھیں، وہاں پر جس لحاظ سے اور جس کانٹیکسٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا گیا ہے، ہاں میں مانتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، تو سارے مسلمان اور تمام پیغمبر بھی اللہ کے بیٹے کہلائے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر یہ کہا گیا ہے وہ لوگ جو اللہ کے بھیجے گئے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے کہلائے جا سکتے ہیں. بائبل کے الفاظ کے مطابق یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، مگر آپ لوگوں کو عیسائیوں کو یہ غلط سمجھایا جاتا ہے اور غلط ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عام بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ بیٹے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے پیدا ہوئے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے جنسی عمل کے ذریعے انہیں پیدا کیا. یہ بات کہنا غلط ہے. دوستو اس بات کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے لفظ بیگاٹن استعمال کیا تھا. انگریزی زبان کے اس لفظ کا یہ مطلب ہے جب کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ جنسی عمل کرے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد ہوگی، اسے بیگاٹن اولاد یا بیگاٹن آف سپرنگ کہا جاتا ہے. اسی طرح سے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیگاٹن سن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ کا پیدا کردہ وہ بیٹا جسے اللہ نے نعوذ باللہ جنسی عمل کے ذریعے پیدا کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ لفظ نہ صرف استعمال کرنا غلط ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے پہلی دلیل آ چکی تھی، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک ایک سے زیادہ دلائل دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ بائبل کو غور سے پڑھیں تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہا گیا ہے، اسرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہا گیا ہے. اسی طرح سے عیسائیوں کی مذہبی کتاب بک آف رومن چیپٹر نمبر 8 میں کہا گیا ہے وہ تمام لوگ جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا نہیں کہا گیا بلکہ سب کو کہا گیا ہے. لیکن تم عیسائی لوگوں کو جو بتایا جاتا ہے وہ اس کے مطابق اللہ کا بیگاٹن سن، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا بیگاٹن کا مطلب اس لحاظ سے بیٹا جو کہ جنسی عمل سے پیدا کیا گیا ہو، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس رشتے سے منسوب کرنا گناہ ہے اور یہ سراسر گمراہی ہے.
दोस्तों गुफ्तगू बहुत दिलचस्प हो चुकी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सब की मैं ऐसे मिसाल दे देता हूँ, अगर आप किसी छोटे बच्चे को बेटा कहकर पुकारें तो वो इस बात पर माइंड नहीं करता, ना नाराज़ होता है। लेकिन अगर आप किसी शख्स को या किसी भी बच्चे को ये कहकर पुकारें कि मैं तुम्हारा बाप हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से जिनसी अमल के ज़रिए तुम्हें पैदा किया है, तो ये बात किसी को भी बहुत बुरी लगेगी, शायद इतनी बुरी लगेगी कि मुझे आकर थप्पड़ मार देगा। इसी तरह से आप लोग इतनी बड़ी गलत फहमी का शिकार होते हुए अल्लाह से ये रिश्ता मंसूब करते हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल से तर्जुमा पढ़ने की आप लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि थाईलैंड के बड़े मजहबी ईसाई रहनुमा ये बात कर रहे हैं, आप लोगों के ही ईसाई आलिम ये बात कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। थाईलैंड से किताब का हवाला देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उन लोगों ने ये लिखा है कि बाइबल से लफ्ज़ बिगॉटन का गलत तर्जुमा किया गया है और किया गया ये तर्जुमा झूठ, फरेब और गलत और गुमराह कुन मालूमात पर मबनी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप लोगों के बड़े बड़े रहनुमा ये बात कह रहे हैं कि गलत तर्जुमा किया जाता है और गुमराही फैलाई जाती है, तो आप लोग ये बात क्यों नहीं मानते। दोस्तों लफ्ज़ बिगॉटन से मुतालिक आपको ये बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी अपनी ज़बान में और अपने इल्म के मुताबिक भी तशरीह की थी। उन्होंने बताया था कि क्या आपको मालूम है, लफ्ज़ बिगॉटन की अगर गहराई में जाएँ तो इसका मतलब ये निकलता है कि सबसे घटिया दर्जे के जानवर, यानी कि सबसे कम समझदार जानवरों की जानिब से जिनसी अमल के ज़रिए एक पैदा की गई औलाद को बिगॉटन ऑफस्प्रिंग या बिगॉटन औलाद कहा जाता है। और आप लोग नाउजुबिल्लाह इतना बड़ा गुनाह करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बिगॉटन औलाद कहते हैं, जो कि ना सिर्फ एक गुनाह है बल्कि बहुत बड़ी गुमराही है, जिससे आप लोग अजाब की जानिब बढ़ रहे हैं। और तो और दोस्तों, जब इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से पूछा कि क्या आपको मालूम है बिगॉटन का मतलब, हैरान कुन बात यह थी कि इस लड़के को इस लफ्ज़ का मतलब तक मालूम ना था। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक की ये तमाम तर गुफ्तगू सुनने के बाद हॉल में मौजूद तमाम अफराद इस बात पर यकीन कर चुके थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उनकी बात में वज़न है। और ईसाई लोग जो ये हर वक्त इतना बड़ा गुनाह करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तमाम लोग यहाँ पर इस बात से मुत्तफिक नजर आए। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने आगे बढ़ते हुए ईसाइयों की इस बड़ी गलत फहमी की वजह भी बताई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारे उलमा जो बताते हैं वो गलत है, तुम्हारे उलमा बाइबल से गलत तर्जुमा करके आप लोगों को पढ़ा देते हैं और आप लोग गुमराही का शिकार हो जाते हैं। बहुत से ऐसे चर्च भी हैं जहां पर अच्छा काम हो रहा है, मगर अक्सरियत ऐसी है जहां पर गलत तशरीह करके लोगों को गलत तालीम दी जाती है और वो नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रिश्ता बतौर उनका बेटा जोड़ते हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर यह भी कहा था कि हम लोग मुसलमान होकर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर पूरा यकीन रखते हैं और ये भी हो सकता है कि मैं आप लोगों से भी बड़ा ईसाई हूँ, क्योंकि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तमाम तालीमात को हक़ और सच मानता हूँ और उनकी तालीमात पर अमल करता हूँ, और मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का भेजा गया एक पैगम्बर समझता हूँ, बजाय इसके कि आपकी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझता हूँ। आप बहुत गलत करते हैं, आप बाइबल को समझते तक नहीं हैं, या फिर आप लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अहकामात पर अमल नहीं करते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़त्ने उस उम्र में हो गए थे जब वो सिर्फ 8 दिन के थे, मगर आप ईसाई हजरात पूरी उम्र ख़त्ने नहीं करवाते, जबकि मुसलमान ख़त्ने करवाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि मुसलमान ईसाइयत पर अमल कर रहे हैं और आप लोग नहीं कर रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ईसाइयों की 3 मजहबी किताबों में कहा गया है कि सूअर का गोश्त ना खाया जाए। मुसलमान नहीं खाते मगर ईसाई खाते हैं और ये गलत करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि ईसाइयों की मजहबी किताबों में कहा गया है कि शराब नोशी हराम है, शराब नहीं पीनी चाहिए। मुसलमान शराब को गुनाह समझते हुए इससे दूर रहते हैं, मगर ईसाई इसे एक आदत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि लफ्ज़ क्रिश्चियन या ईसाई का मतलब ये है कि वो शख्स जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अहकामात पर अमल करता है, तो भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम मुसलमान आपसे ज़्यादा ईसाई हैं, क्योंकि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बातों को मानते हैं और उनके अहकामात पर अमल करते हैं, जबकि ईसाई लोग इस सब पर अमल करते नज़र नहीं आते, जैसे कि आप भी समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से दिया गया जवाब मुकम्मल तौर पर वाज़ेह था और यहाँ तक हॉल तालियों से गूंज उठा था। So I love Jesus Christ, peace be upon him, more than you. I follow his teaching more than you. And if you want, I can prove it to you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं शायद ईसाइयों से ज़्यादा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं उनकी बाइबल जो कि उन पर नाजिल होने वाली अल्लाह की भेजी गई आसमानी किताब है, उस पर मुकम्मल यकीन रखते हुए उसका गलत तर्जुमा करके ख़ुद को गुमराह नहीं करता। तुम ईसाई लोग मौजूदा हाल के
उल्टे सीधे चर्चेज में जाकर खुद को ख़राब कर लेते हो और वहाँ से हासिल करदा इल्म आगे तक पहुँचाते हो, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है, और तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हो, वो भी अल्लाह का वो बेटा जिसे अल्लाह ने जिनसी अमल के ज़रिए नाउज़ुबिल्लाह पैदा किया हो। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इस लड़के के सवाल का जवाब दिया जा चुका था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से पूछा कि आप यकीन रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं? जवाब में कहा, नहीं, अब मुझे समझ आ गया है, अब मैं ऐसा नहीं सोचता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आप यकीन रखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं? इस लड़के ने जवाब दिया, जी हाँ, और ये कहकर ये लड़का माइक्रोफोन के सामने से हट गया, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से दी गई दावत इस्लाम की पेशकश को ना सुन सका। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी समझा कि इस मौके पर इस लड़के को दीन इस्लाम की पेशकश करना मुनासिब नहीं। मगर चंद रोज़ बाद एक और कॉन्फ्रेंस में ये लड़का आता है और वहाँ आकर डॉक्टर जाकिर नाइक से दरख्वास्त करता है कि मुझे दीन इस्लाम कबूल करना है, और डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के को कलमा शहादा पढ़ाते हैं। यूं ये लड़का ईसाईयत छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे कोई सवाल करते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए सवाल नहीं लाए, बल्कि आपके लिए वो जरिया लाए हैं जिससे आप डॉक्टर जाकिर नाइक से बराह रास्त सवाल कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक से व्हाट्सएप के जरिए सवाल करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर जानने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर मौजूद वीडियो पर क्लिक करके वो नंबर मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक से रब्ता करने के तमाम तरीके लाए हैं, और इस तरीके के जरिए लोग डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल पूछते हैं और उन्हें उनके सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक फेसबुक लाइव सेशन में देते हैं। दोस्तों, हम कदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाते हैं, ताकि आप लोग समझ सकें और जान सकें कि डॉक्टर जाकिर नाइक किस तरह से दीन इस्लाम की रोशनी फैला रहे हैं। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।